السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں کھری بات لقمان کے ساتھ. میرا نام مبشر لقمان ہے اور آج کا جو پروگرام ہے میری آپ سے اسپیشل ریکویسٹ ہے کہ یہ آپ نے پورا دیکھنا ہے. اور اس کا سیاست سے تعلق نہیں ہے, اس کا معیشت سے تعلق نہیں ہے, اس کا کالا باغ ڈیم سے تعلق نہیں ہے, اس کا ٹارگٹ کلنگ سے تعلق نہیں ہے, بٹ اس کا ٹارگٹڈ نگلیکشن سے ضرور تعلق ہے یا نگلیکٹ سے تعلق ہے. اور وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کی ایک ہی اسٹرینتھ سمجھی جاتی ہے اور وہ یہ سمجھی جاتی ہے کہ جی یہاں بڑوں کا خیال کیا جاتا ہے, بچوں سے پیار کیا جاتا ہے اور ہمارا فیملی انسٹیٹیوشن بڑا اسٹرانگ ہے. ہم سمجھتے ہیں صرف ہماری حکومتیں کرپٹ ہیں, ہم سمجھتے ہیں صرف ہماری حکومتیں انیفیشینٹ ہیں اور ہمیں اپنے اندر کی جو کوتاہیاں ہیں وہ نظر نہیں آتی. حالت یہ ہے کہ صرف لاہور شہر میں, لاہور کی میں اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ میں لاہور میں رہتا ہوں اور لاہور کا مجھے نسبتاً دوسرے شہروں کے زیادہ پتہ ہے. لاہور شہر میں درجنوں ایسے گھر ہیں جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں اولڈ پیپلز ہومز ہیں, جہاں پہ ایسے والدین کو ڈال دیا جاتا ہے کہ جنہوں نے ساری عمر کمائیاں کر کے, ساری عمر لگا کے اپنی اولاد کو پالا پوسا ہوتا ہے, ان کو سینچا ہوتا ہے, ان کو بڑا کیا ہوتا ہے, ان کو طاقتور بنایا ہوتا ہے, اور پھر ایک دن وہی اولاد ان کو دھکے دے کے اپنے گھروں سے باہر نکال دیتی ہے کیونکہ ان کے لیے وہ قابل احترام بھی نہیں ہے آبویسلی اور ایک بوجھ ہیں ان کے اوپر. یہ ماں ہو یا باپ ہو, اس کو بچے کیوں گھر سے نکالتے ہیں اور پھر اس معاشرے میں کیا بچ گیا؟ اگر یہاں پہ یہ قدر بھی ختم ہو گئی تو پھر ہمارے آگے چلنے کی بحیثیت ایک سوسائٹی کیا امید باقی رہ جاتی ہے؟ کیونکہ باقی تو کوئی اچھائی ہے نہیں ہمارے میں, کوئی زیادہ نہیں. جھوٹ ہم بولتے ہیں, چوریاں ہم کرتے ہیں, ڈکیتیاں ہم کرتے ہیں, مذہب کے نام پہ قتل ہم کرتے ہیں. اور یہ جو ایک ہمارا ایک بھرم ہے اپنے آپ میں, جو ہم کسی ویسٹرنر کو ملتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارا فیملی انسٹیٹیوشن بڑا اسٹرانگ ہے, تو آج وہ بھرم بھی آپ کا ٹوٹ جائے گا. میرے ساتھ اس وقت تشریف رکھتے ہیں فضل الرحمان نیازی صاحب. نیازی صاحب چیئرمین ہیں سٹیزنز کمیونٹی بورڈ کے, ایک اپنی این جی او چلا رہے ہیں, فلائی ادارہ چلا رہے ہیں جو مختلف لوگوں کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے ان کی ڈونیشنز پہ, تاکہ اولڈ پیپلز ہوم ایک ان کا جو چل رہا ہے اس کو احسن طریقے سے چلایا جا سکے. جمیلہ افضل ہے میرے ساتھ یہاں پہ بیٹھی ہوئی, منظور فاطمہ ہیں اور عبد القادر صاحب ہیں. اور اگر آپ نے ان کا تعارف سننا ہے تو ان کا تعارف بڑا آسان ہے کہ یہ تینوں اپنے اپنے گھروں سے نکالے جا چکے ہیں, اپنے بیٹوں کے ہاتھوں نکالے جا چکے ہیں کہ جن کے اوپر فخر سے مائیں کہتی ہیں یہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا. پہلے جمیلہ افضل صاحبہ, آپ کتنے سال سے اولڈ پیپلز ہوم میں ہیں؟ میں یہاں 5 سال سے. 5 سال سے. تو 5 سال پہلے آپ کے شوہر تھے؟ نہیں, شوہر تو 15 سال ہو گئے, ایڈوکیٹ تھے وہ, ان کی ڈیتھ کے بعد سب بربادی ہو گئی. کیا ہوا ان کی ڈیتھ کے بعد؟ بس بیٹے اپنے اس میں ہو گئے, گھر ور بیچ دیا, اب میں ہی اکیلی رہ گئی. گھر کیوں بیچ دیا؟ کہ جی ہم نے تو کوٹھی بنانی ہے. کوٹھی بنی پھر؟ بیٹوں نے ضد کی اور کوٹھی بنائی بھی. ہم لوگ ٹاؤن شپ میں تھے, وہاں سے واپڑا ٹاؤن میں بنائی, تو وہ بھی آپس میں کراچی بیٹے کے پاس گئی ویسے ہی, تو وہاں 6 مہینے گزار کے آئی ہوں, تو یہاں پہ وہ واپڑا ٹاؤن کی کوٹھی بھی گئی. پھر کسی کے پاس رہی, ان کو ملی کہاں, وہ کیا چکر ہے یہ کہ نہیں ہم نے علیحدہ علیحدہ رہنا ہے, اپنے اپنے بیوی بچوں کو لے کے. تو آپ کو کوئی نہیں رکھتا ساتھ؟ کوئی نہیں رکھتا. حالانکہ میں ہمیشہ جاتی ہوں اور تھوڑے دن ہی رہتی ہوں, بس اس کے بعد وہ بہو رانی یہ ہے وہ ہے, لڑائی تو نہیں لڑتی مگر یہ کہ بھئی یہ چلی جائیں, یہاں کیوں آئیں. وہ پھر میری ایک سہیلی نے بات کی کہ تم آرام سے یہاں آ جاؤ, آرام سے رہو. میں جب سے بڑے آرام سے ہوں یہاں پہ. تو آپ کو ملنے آتے ہیں؟ نہیں. آپ کو آپ کے سگے بیٹے ملنے نہیں آتے؟ سگے بیٹے میرے صرف ایک آتا ہے بیچ والا, تو بس مل جاتا ہے, چلا جاتا ہے, کچھ تھوڑے سے پیسے دے جاتا ہے. وہ پھر ظاہر ہے بڑھاپے میں ویسے ہی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں, تو باقی یہ ہے اللہ کا شکر ہے کہ یہاں رہتے ہوئے ٹھیک ٹھاک ہوں. تو کتنے پوتے پوتی ہیں آپ کے؟ 3 بڑے کے, 2 بیٹے, ایک مطلب 2 بیٹے 1 بیٹی ہے, چھوٹے کی 2 بیٹیاں ہیں, اور ایک چھوٹا ہے وہ بڑے کے پاس ہی ہے, اس کی ابھی شادی وادی نہیں ہوئی. بیٹیاں اپنے گھر بڑی اچھی ٹھیک ٹھاک رہ رہی ہیں, ان کے گھر میں رہ نہیں سکتی, مجھے پسند نہیں ہے. بچے یاد آتے ہیں؟ بچے تو بہت یاد آتے ہیں, اور اسی میں مہینے بعد 2 مہینے بعد جایا کرتی ہوں وہاں کہ چلو 2-4 دن رہ کے دل کو تسلی دے کے, تو وہ 2-4 دن بھی وہاں پہ پسند نہیں کرتے. حالانکہ میں ان کو, یعنی اپنی ماں کا رہنا پسند نہیں کرتے؟ جی. آپ نے کوئی کمی چھوڑی اپنے پیار میں ان کے لیے؟ کوئی کمی نہیں چھوڑی, میں نے سب کچھ تو ان کو دے دیا. یہی تو غلطی کی ہے میں نے
کیونکہ اپنا مکان تھا شوہر کا خریدا ہوا. ان کی ڈیتھ کے بعد سے ان لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا. لڑکوں نے کہا ہم نے یہاں نہیں بیٹے آپ کے کرتے کیا ہیں؟ جاب کرتے ہیں, اچھی جابس کر رہے ہیں؟ اچھی جابس کر رہے ہیں, اور ڈبل ایم اے کروایا ان کو. تعلیم میرے گھر میں اتنی زیادہ ہے کہ بس میں کیا بتاؤں, مگر آج مجبور ہوں اس لڑائی کے. تو اس کا مطلب ہے کہ جاہل لوگ تو آپ سے بہتر ہوئے. واقعی صحیح کہہ رہے ہیں, انہوں نے تو سب کچھ ختم کر دیا. منظور فاطمہ صاحبہ, آپ کو بھی بچوں نے گھر سے باہر کیا؟ نہیں رکھتے اپنے پاس, ہم بیمار ہیں, ہمیں دوائیوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے, نہیں رکھتے. آپ کی سگی اولاد آپ کو نہیں رکھتی اپنے ساتھ؟ آپ کے بچے انکاری ہیں آپ کو رکھنے سے؟ ہاں جی, کوئی یہاں کوئی ملنے بھی نہیں آتا. عبد القادر صاحب, آپ پولیس میں تھے؟ جی. تو پولیس میں ملازمت کرتے کرتے کیا ہوا بچوں کے؟ ان کو پڑھایا ہے, جوان کیتا ہے, ملازمت کرائی ہے, ملازمت لگ گئے, شادی کی تھی, تینوں بیٹے نے شادی کر دی تھی. میرا چونکہ اپنا مکان نہیں تھا, وہ گھر جو آئی جا کے تینوں بیٹے اپنے سسرال میں رہنے لگ گئے. سسرال میں وہ ہم کو ان کے سسرال والے ان کو تو سہرے کے گھر جو آئی وہ بھی کتا, مثل مشہور ہے, بہن کے گھر پرا تو وہ بھی کتا. وہ اپنی اتنے انہوں کی حالت وہی, سانوں اتنے ایک منٹ نہیں, ایک دن نہیں انہوں نے رہتا. سسرال والے نہیں نہ رکھنا چاہتے اپنے کو. تو برے تو آپ کے بچے ہوئے نا جی, ان کی بالکل سسرال تو بری نہ ہوئی, فرض تو یہ بچوں کا ہے نا. نہیں صاحب, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ ماں باپ جن کو گھروں سے نکالا ہوا ہے یہ ابھی بھی اپنے بچوں کو کچھ نہیں کہنا چاہ رہے, ان کی سسرالوں کو, بیویوں کو بلیم کر رہے ہیں. آج تک وہ یہاں ہمارے پاس آتے ہیں اور کوشش یہی کرتے ہیں کہ اپنے بچوں جو آتے ہیں ان پہ پردہ رکھیں. دل دکھتا ہے ان کا, لیکن پھر بھی کوشش یہی ہے. جیسے ماں بد دعا نہیں دیتی, یہ بد دعا کسی نے کبھی, میرے سامنے کبھی, یہ 3-4 سال ہو گئے ان کے ساتھ, تو کسی نے کبھی اپنے بچوں کو بد دعا نہیں دی. آپ کے 2 بیٹے تو پولیس میں ملازم ہیں, ایک پرائیویٹ جاب کرتا ہے. ہاں جی, اس کے باوجود ان کو مجبوری ہے. پتہ نہیں. نو کہ مر نہیں سکتے, مر جے تو مرے تو بساں کر. وہ سس بھی نہیں دیکھنے, سہرے نے دیکھنا نہیں چاہتے تھے, رکھنے انہوں کی کوٹ کتنے رہی ہے. میرا بھی بڑا بیٹا آیا پہلے ٹائم جب پتہ چلا کہ امی وہاں دارے میں آیا ہے, ملا ہے, بڑا خوش ہوا, کہتا ہے ٹھیک ہے. بس اس کے بعد آج تک نہیں آیا کہ امی ٹھیک ہے وہاں. کیا مطلب ٹھیک ہے؟ بھی ٹھیک رہ رہی ہیں, اچھا گھر مل گیا ہے ہم کو, اپنے پاس نہیں لے کے گیا. اور میں کہتی رہتی ہوں, فون کرتی رہتی ہوں کہ مل تو جاؤ, کہ اچھا 1-2 دن میں آؤں گا, 1-2 دن میں آؤں گا, بس آتا نہیں. آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے پاس ایک میاں بیوی ہیں جن کے 2 بیٹے سرونگ لیفٹیننٹ کرنلز ہیں, وہ نہیں رکھنا چاہتی. وہ ہمارے پاس, باپ معذور ہے, بیوی اس کے ساتھ ہے. کیا اتنی کیا طاقت آ گئی ان میں, اتنی بس کیا وہ مجبوری؟ بیویاں جو ہیں, سب سے بڑا جو ہوتا ہے وہ بیوی جو ہوتی ہے, وہ کہتی ہے کہ آدمی جب سن مرید ہو جاتا ہے تو پھر وہ مجبور ہے. تو بیوی نے بھی تو ایک دن ماں بننا ہے, ساس تو بننا ہے ایک دن. یہ اس کا یہ وہ تو بات کی بھول بات جاتی ہے, ہے, وہ جب بھول وقت جاتی آئے ہے گا اس بات دیکھی کو, جائے گی. اس بات کو بھول جاتی ہے. ہر ایک کی اپنی اپنی کہانی ہے. آپ تو ہمارے پاس آتے ہیں, سنتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں کہ معاشرہ کتنا تباہ ہو رہا ہے. کیا وقت تھا کہ لوگ اپنے ماں باپ کی عزت کرتے تھے, ان کو جو ہے کہاں درجہ دیتے تھے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جو ہے وہ جنت ہے. باپ کی جو ہے بد دعا سب سے بری ہے, وہ شرک کے برابر ہے ان کی بے حرمتی کرنا. لیکن آج
बिल्कुल माशरा तब्दील हो गया है और लोग इस तरह, मैंने अपनी आंखों से देखा है एक बुजुर्ग को जो कि रिटायर्ड मेरे ख्याल में सूबेदार मेजर था, उसकी बहू ने उसको मारा, उसका बाजू टूटा हुआ था और बेटा फिर दूसरे दिन ले तो गया है, बेटा MA पास था, सब कुछ था, बड़ा अच्छा कहीं मुलाजिम था, लेकिन ऐसे ऐसे वाक़यात होते हैं कि हैरान हो जाता है कि ये क्या हो, घरों में हो क्या रहा है, क्या इतनी तब्दीली आ गई है, पता नहीं क्या हो रहा है जी घरों में हमारे। और एक ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको ज़रा एक ओल्ड पीपल्स होम भी दिखाएंगे और फिर आप खुद फैसला करिएगा कि हमारे घरों में क्या हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है। 9 साल हो गए मैंने बच्चों को देखा नहीं है, मुझे बहुत तकलीफ है, बच्ची मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, अभी भी छोड़ के आज ही आए और वो रो रही थी, मैं भी रो के आया, मेरे से उस बेचारी से सीढ़ियाँ नहीं चढ़ा जाता था। पढ़ती नमाज, अल्लाह से दुआ करती, पता नहीं मैं कहाँ से कौन सी मतलब ऐसी गुनाह करी जो मुझे आज यहाँ तक पहुँचे न पड़ा। आपका यही ख्वाहिश है तो मतलब बस अल्लाह अल्लाह करूँ, अल्लाह से दुआ करूँ, जितने दिन जिंदगी है बस ऐसे ही गुजार दूँ बस। मुझे बच्चे नहीं बुला सकते, मुझे नहीं बुला सकते, लड़कियों के हाथ में जाता नहीं हूँ कतई किसी हालत में भी। और लड़का है एक, वो लोग इलिटिट है, लड़का जो था हमारी तरह था, मगर वो वहाँ जाने के बाद सस के घर में वो गया, वो सस घर जो आई वो भी कुत्ता, बहन घर भाई वो भी कुत्ता, वो वहाँ उनके रंग में रंग गया। नाफरमान औलाद को यही है कि खुदा के लिए उन्होंने भी बूढ़े होना है, वो ऐसा काम ना करें जिससे आने वाली नस्ल भी परेशान हो। तो यही हमारे दोस्त हैं, यही हमारे दुश्मन हैं, यही हमारे भाई हैं। कहाँ हैं मुझे मालूम नहीं, न मैं जाता हूँ न पूछता हूँ, न वो मेरे से मिलते हैं। हमारा कोई घर नहीं, कोई दर नहीं है, हमारा कोई नहीं दुनिया में, अब किससे घर चले, अब क्या करें। अब तो कब्र का इंतजार है। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप कुछ फैमिलीज की बातें सुन रहे थे जिनको उनके बच्चों ने घरों से निकाल दिया हुआ है। ओल्ड पीपल होम का एक विजिट करते हैं, देखते हैं वहां पे इस वक्त क्या हालात हैं। वॉच नाउ। जिंदगी भी क्या क्या रंग दिखाती है, कभी तो फूलों की सेज और कभी कांटों का बिस्तर। बिस्तर भी ऐसा कि जिसका हर सूल एक नए जख्म को जन्म देता है। इसे बच्चों की सफाकी कहें या माँ बाप के नामुनासिब तरबियत का नतीजा, लेकिन माँ बाप को घर से निकाल देना किसी सूरत भी रवा नहीं है। माँ बाप के बारे में तो रब्बे कायनात का हुक्म है कि अगर बूढ़े भी हो जाएं तो इन्हें उफ तक न कहो, लेकिन क्या करें, आज के दौर की औलाद जहां माशरती रवायात की बागी है, वहीं इस्लामी इक़दार से बेबहरावी। औलाद के हाथों जुल्म सितम का निशाना बनने वाले माँ बाप अगर ओल्ड एज होम न जाएं तो कहाँ जाएं? यही तो उनकी आखिरी उम्र का आखिरी सहारा है, जहां सारे टूटे हुए लोग एक दूसरे को जोड़ने में मसरूफ हैं। यहाँ इनको हर किस्म की आसाइश मुयस्सर है, बस अगर नहीं है तो इनके बच्चे, इनके जिगर के टुकड़े, जिस माँ बाप ने उनको उंगली पकड़कर चलना सिखाया हो, आज उन्हीं को घरों से धक्के देकर निकाल दिया। जिन्होंने औलाद के अच्छे मुस्तकबिल के लिए अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी, आज उन्हीं को गमों के अंधेरों में धकेल दिया। जिन्होंने उनको हर आसाइश फराहम की, आज उन्हीं को बेआसरा छोड़ गए। जिंदगी की बाजी तो ये बुजुर्ग कब के हार चुके, मगर दिल लगी के लिए और अपनी फीकी जिंदगी में कुछ रंग भरने के लिए इकट्ठे होकर खेल खेलते हैं और एक दूसरे को छेड़छाड़ कर वक्ती सुकून हासिल कर लेते हैं। हर रिश्ते की मोहब्बत को अल्फाज में बयान किया जा सकता है, मगर एक रिश्ता ऐसा है जिसकी मोहब्बत को अल्फाज की माला में परोना नामुमकिन है, और वो रिश्ता सिर्फ और सिर्फ माँ का है। माँ जैसी हस्ती दुनिया में है कहाँ, नहीं मिलेगा बदल, चाहे ढूंढ ले सारा जहां। शफ़क़त भरा तेरा चेहरा, छल की मोहब्बत का जज्बा, कायम रहे साया तेरा, कदमों में है जन्नत का पता, हर दुख को खुद सहा मेरे लिए तूने। माँ जैसी हस्ती दुनिया में है कहाँ।
आखिरी वक्त तक औलाद की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार रहती है। वही रिश्ता जिसके चले जाने के बाद मूसा को भी तंबीह कर दी गई थी और जिसके कदमों के नीचे जन्नत रख दी गई है। ऐसी कई जन्नतें इस ओल्ड हाउस में इकट्ठी रहती हैं और एक दूसरे के साथ हंस खेल कर अपनी इस जहन्नुम जिंदगी को खुशगवार बनाती हैं। सिलाई कढ़ाई, खाना पकाना, किताबें पढ़ना, टीवी देखना और फारिग औकात में खुशगप्पियां लगाना इनका मामूल है, ताकि इस मसरूफियत के बहाने किसी तौर घर की याद को बुलाया जा सके। इन आंखों से उनकी जिंदगी का मद्दोजर आया है। ये यास, हसरत और नाउमीदी वाली नजरें शायद अभी भी दूर अंधेरों में मादियत परस्ती और बेहिसी की धूल में अटे हुए चेहरों की मुतलाशी हैं। आप देख रहे थे एक स्पेशल पैकेज ओल्ड पीपल्स होम का। फजलुर रहमान न्याजी साहब, इनका ज़रा किसी बच्चे का नंबर तो देना हमें, ताकि हम उनको ज़रा रब्ता करें। अभी लेके आए फ़ोन पे, क्या कहते हैं? बात यह है जी कि जब ये हमारे पास आते हैं तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि ये अपने कोई बेटे या बेटी का नंबर दें, लेकिन ये कतई नहीं देते, बल्कि हम ये कहते हैं कि अगर खुदा न खास्ता आप हो तो जैसे हम क्या करेंगे। तो ये कहते हैं जी हमें आप ईदी भी दे दें, दफना दें, किसी को इतला देने की भी ज़रूरत नहीं है। चंद एक केस पिछले दिनों एक शरीफ आदमी फौत हुए, तो हमें बड़ी मुश्किल से उनका जो है वो नंबर लिया बेटों का, उनको टेलीफोन किया, तो वो कहने लगे जी कि आप उनकी मैयत हमें किला गुजर सिंह में पहुंचा दें, लेकिन हम खुद नहीं आ सकते। तो हमने वो फिर एम्बुलेंस की और उसको किला गुजर सिंह में पहुंचाया। और वो आदमी 18 साल सऊदीया में कमाता रहा और ये उसके कमाई पर इन्होंने मकान भी बनाया, सब कुछ किया और उसको घर से निकाल दिया। जमीला बीबी, आपको अपने बच्चों के नंबर पता है? नहीं, नंबर नहीं देते नहीं आपको? नहीं, मोबाइल वगैरह रखे हुए हैं ना, तो मेरे पास तो तो अभी आपने कहा था कि मैं कभी फोन करती हूँ कि मिलने आ जाओ। हाँ, तो वो बेटी का घर है ना टाउनशिप में, वहाँ जाती हूँ तो उससे कहती हूँ भी जरा मिला दो। बेटियां भी नहीं मिलने आती हैं आपको? नहीं, वो तो बच्चों वाली हैं, वैसे बहुत खुश हैं, बहुत ठीक है। दामाद मेरे कहते हैं कि हमारे पास रहो, मैं कहने मैंने नहीं रहना। दामाद बहुत अच्छे हैं, बेटियां अपने घर में बहुत अच्छी हैं। बेटे बुरे हैं? बेटे ही बुरे हैं, यही कहूँगी, बहू को तो नहीं कहूँगी। तो मंजूर फातिमा साहब, ऐसे तो बेटों से बेटियां अच्छी हैं ना? बुरे बेटे ना बेटी अच्छी। बेटी वो तो अच्छी लड़ते है? हैं मेरी बेटियों से कि अम्मी को क्यों नहीं रखती। अम्मी नहीं रहती तो मैं क्या करूँ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੂੰਹਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣ? ਘਰਾਣੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ बूढ़े हैं, ਅਸੀਂ उस उम्र 'ਚ पहुँच गए हैं कि साड़ी कोई भी बात उन्हें अच्छी नहीं लगती। ये तो पुराने ज़माने के, इनकी सोच नहीं मिलती हमसे। हम ये तो गंद फटते हैं पांडे में, ये तो क्लीन ख़राब करते हैं, ये तो ऐसे फिर नहीं गुजारा होता। क्यों अब्दुल कादिर साहब जी, कालीन खराब करते हैं आप, गंद डालते हैं? हाँ जी। खंग देने जी, खंग देने बाहर सुट, खांसी होती है तो वो थूक के लिए कहते हैं। खांसी होती है तो वो थूकने बाहर कहते हैं, घर से बाहर जाके थूको? हाँ जी। कितने बच्चे हैं अब्दुल कादिर साहब आपके? 3 बेटे हैं, 2 बेटियां। बेटियां आप अपने घरों में, बाल बच्चेदार। बेटे में तीनों ससुराल में रहते हैं। ससुराल के हाँ उधर उनके मकान अपने नहीं है। पुलिस में मुलाजमत करते हैं, क्वार्टर तो मिलता होगा? एक को क्वार्टर मिला हुआ है, लेकिन वो भी हमें रखने के लिए तैयार नहीं है। वो हमारी नौ जी है ना बहू, उन्हें कोई जादू पे आया कि सानू वेखना ही नहीं चाहते, मिलना नहीं चाहते। तो आपने सारी उम्र कमाया को अपने लिए बचाया? नहीं, कुछ नहीं। क्यों? मकान भी नहीं बनाया। क्यों नहीं बचाया? किराए पे मकान पे रहते थे। इन्होंने ब्याया, इन्होंने पढ़ाया, इन्होंने नौकरियां तो लवाया। मकान बेच के अपना तो ना शादियां कर देती, आख्या ना शादियां। क्या हालात है जी? हालात ये है जी कि जो तो वालिदैन जिनकी अगर कोई मकान बनाया है, कुछ अपने लिए रखा है, उसकी तो इज्जत होती है। चाहे वो हमारे पास एक
नाराज़ होकर बहू से आ भी जाता है तो फिर उसको बेटा जो है वो लेने आ जाता है। कम से कम 300-400 आदमी हमारे पास ऐसे मेल आए हैं जिनको वापस ले गए हैं। कि ख़वातीन तो जो आई हैं वो बहुत कम गई हैं, वापस को लेने कोई नहीं आया, वो तो हमारे पास है ही हैं। जो मैंने देखा है कि जो बुज़ुर्ग अपनी जायदाद बच्चों में बांट देता है, वो समझता है कि मैं कुछ बेटियां ना ले जाएं, लड़कों को दे दूं सारा, वही बाद में वो इसको निकालते हैं घर से और वो हमारे पास आता है और हमेशा रहता है। जायदाद बांट दें, औलाद को पैरों पे खड़ा कर दें और उसके बाद वो आपको घरों से निकाल दें। अगर है आपके पास तो, एक खातून है हमारे पास, वो उनके मियाँ बहुत अच्छे ऑफिसर थे वहाँ फैक्ट्री में, उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, उन्होंने अपनी तो एक बेटी थी, उनकी बेटी को पढ़ाया, MA किया गालबन उसने, फिर उसकी तमाम जायदाद खातून ने बेचकर बेटी की शादी एक ऑस्ट्रेलिया के लड़के से कर दी ताकि वो फॉरेन एजुकेटेड होगा। अब वो लड़की जो है अपने वो ये भी उनके साथ रहने लग गई कि अपना सब कुछ बेच के, तो आखिर जनाब वो उसके जो है दामाद और दामाद के वालिद ने कहा कि आप हम यहाँ से निकले हैं। वो खातून बेचारी बेटी जो है वो रोती रही, वो भी हम जिस दिन दाखिल होने आई तो वो भी हमारे पास आई, साथ आई। वो उसने कहा, उसका जो लड़के का वालिद था उसने कहा जी कि ये इसकी लेपालक बेटी है, हालांकि वो हमारे सामने कहा तो उस तरीके दाखिल करवाया। तो ये वो लड़की अब उसको मिलने भी आती है, उसके चलें आते हैं इस पे, लेपालक औलाद हो या तो असली औलाद है, अपनी असली औलाद। एक ब्रेक के बाद, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप कुछ ऐसे अनफॉर्चुनेट पेरेंट्स की बातें सुन रहे थे जिनके औलाद ने उनको घरों से निकाल दिया। एक और ने हमें ज्वाइन किया, अजीज़ अहमद साहब। अजीज़ अहमद साहब हमारे साथ बैठे हैं। इनकी एक बेटी तो स्कूल में है, लेकिन 2 बेटे कामकाज भी करते हैं, तीसरे की करियाने की दुकान है, और ख़ुद इनका जूतों का कारोबार था, काम करते थे जूतों का। और जब इनका काम ख़त्म हुआ तो बेगम और बच्चों ने मिल के इनको घर से निकाल दिया। सही कह रहा हूँ मैं? ठीक, बाकी मजदूरी करते थे, कारखाना अपना नहीं, सॉरी, मजदूरी करते थे, आप काम करते थे। क्या वजह हुई निकालने की? वजह यही, औलाद जवान हो गई है, मैं बेकार हो गया हूँ, और बच्चों ने मेरे ने और बीवी ने निकाल कर उनको कहने आप बाहर जाएँ, आप हमारे काबिल नहीं है जो आप हमें कमा के देंगे। कोई आप नशा वगैरह तो नहीं करते? नहीं, कोई नशा नहीं करता भाई, किसी किस्म का? किसी किस्म। तो वजह क्या हुई, काबिल क्यों नहीं रहे आप उनके? सारी उम्र आपने उनको खिलाया। से एक आंख का मैंने ऑपरेशन कराया हुआ था, वो ठीक है, और दूसरी आंख मेरी ये बंद है। तो मैंने ये सोचा मौसम अच्छा हो जाएगा तो यह कहते बच्चों को कह लगा जी बच्चे के इतने में सैल नहीं है जो बच्चे तुम्हारा वो करें, तुम जाओ भीख मांगो और जाके जो है ना कहते अपनी ज़िंदगी गुजारो। बच्चा मेरा जो है ना एक उठ के कहने लगा पापा आप चले जाएँ, नहीं तो ये है मैं तुम्हें जो है ना एक टीका जहर का लगा के और ऊपर से तीसरी मंजिल किराए पे, मैं किराए का मकान लिया हुआ है, तीसरी मंजिल से ऊपर फेंक देंगे, आपको कहेंगे अभी दुनिया को कहेंगे पेशाब करने उठे थे ये गिर पड़ेगी। मैं अपनी जान छुड़ा के मेरे बॉस हैं, ये बड़े जहाँ पे मेरे दारुखाने में, वो 2 भाई बॉस हैं मेरे, इनके पास आके मैं रोया पीटा, और मैंने इनको कहा भाई क्या ऐसा मेरे में ये है, ये इन्होंने बेचारों ने दाखिल कर लिया। बहुत अच्छे बंदे हैं ये मेरे। मुझे ये बताएं कि ऐसी औलाद को कभी बदुआ दिया आपने? अब बददुआ क्या देनी औलाद को, सबसे बड़ी बात ये है, आप क्या कह सकते हैं भाई, बददुआ देते ही अपने आप को दिल दुख है, बच्चा को पता लगे हाँ बच्चा ये बददुआ नहीं देना, बच्चा कभी बच्चा जन्म जब उसको कोई तकलीफ आएगी तो हमें तो आएगी, बाकी उनको हमारी ना आए। बीवी ने आपकी क्यों मुखालफत की? उसको मुखालफ ईसा से हुई है भी, लिहाजा मैं बेकार हो गया उनके आसे नहीं। अब जो औलाद कहती है वही करते हैं वो औलाद। मैंने उनसे ये पूछा, मैं क्या मुझे एक रोटी का सहारा है और ये रोटी कह लेंगे ये रोटी भी आपको नहीं मिलेगी, आप रोटी भी बाहर से भीख मांग के अपना गुजारा कर, और यहाँ पे रहने के वास्ते मेरे पास कोई जगह नहीं। मंजूर बीबी, इतना बोझ हो जाते हैं बूढ़े माँ बाप अपने जवान औलादों के लिए। 7 बच्चे माँ बाप पाल देना, 7 बच्चे मिलके भी माँ बाप को नहीं पाल सकते, नहीं पाल उन्होंने को साढ़े जोगी जगह ही नहीं रही।
क्यों जमीला बीबी? बिल्कुल जो ये कह रही हैं वही चीज़ है। अब वहाँ जाते हो, उनका अगर काम वगैरह भी कर देती हूँ जितना होता है, उसके बावजूद ये कि ये बस ऐसे ही बैठी रहती हैं। नमाज वगैरह पढ़ती हूँ, नमाज तो बाकायदा से पढ़ती हूँ, पता नहीं क्या क्या ये पढ़ती हैं, क्या क्या वजीफे करती हैं। बताएं, अल्लाह का नाम लेना है हमने, और अल्लाह ने हमें बेहतर कर दिया। मैं तो अब यहाँ पे बहुत खुश हूँ कि वो लेने भी आए तो नहीं जाऊँगी, क्यों यहाँ सुकून से नमाज़ें आपको मंसूर बीबी अगर लेने आए तो आप जाएंगी? नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। आपके मियाँ भी नहीं जाएंगे? हमारा यही घर है, हमने ये इधर ही मरना, इधर हम नमाज रोजा हर चीज यहाँ करते हैं, बड़े अच्छे। माँ बाप की तो ख्वाहिश होती है कि औलाद उनको कंधा दे, दफन करे। ख्वाहिश तो थी, हम भी कहते थे कि हम बाल बच्चों में रहें, बाल बच्चे को देखें, खेलें, मगर हमारी किस्मत में ये सुख नहीं है, क्या करें। आपने इसलिए अभी भी रुपट्टे से अपना मुंह छुपाया कि आपकी औलाद शर्मिंदा ना हो आपको देख के। आप उस औलाद की शर्म रख रही हैं जिसने आपको सड़क पे छोड़ दिया। ये हकीकत है कि पहले भी आए थे तो वहाँ ऐसे छुप छुपा के हम लोग बैठे थे। हौसला रखो, बस गाल करो तुझे। मेरे पास एक चेयरमैन ज़कात कमेटी के गुजरांवाले से आए, उसके बेटे बच्चे जो थे वो एमए पास थे सारे। वो मुझे कहने लगे जी मैंने टीवी पे नहीं जाना, मुझे कुछ देखे नहीं, मुझे रो रहा थे, लेकिन मैंने किसी को अगर पता न चले कि मुझे बच्चों ने घर से निकाल दिया। तो इस किस्म उन्हीं की इज्जतें अब तक रखते हैं। इज्जत रखते हैं। मैं 5 वक्त नमाज पढ़ती हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए खैर की दुआएं मांगती हूँ, हाथ है मेरे बच्चों का कोई दुख ना हो, मुझे हो जाए। क्यों जी? बिल्कुल सही कह रही बाजी मेरी। माँ बाप तो बड़ा कुछ सोचता है, पर औलाद नहीं सोचती। आपने सोचा था जब बच्चों को उठाया था, उनको डॉक्टरों के पास लेके गए, जब लेकिन उनको सारा वाकया बताया और सबको उनको पता, उनकी माँ को भी पता थी। मैंने अब कैसे कैसे मजदूरी करी, कैसे कैसे मैंने मजदूरी राज मजदूर के साथ ईंटें उठाई, और कैसे मैं गर्मी में मैं मरा हूँ, कैसे मैंने वो करा है। बाकी उसका कोई सिला नहीं मिला भाई। मैंने यही आस लगाई हुई थी, मैं कहा मेरे कल को बेटे पढ़े लिखेंगे, मेरा आसरा बन जाएंगे। पूरा वो आसरा के बजाय उन्होंने निकाल के ये आसरा बन गए, जो लिहाजा जो है मुझे आज घर से बेघर हो गया। फजलुर रहमान साहब, नई साहब, ये आपके आगे रोज़ होता है ये वालिदैन की बेहुरमती। अब तो ये इतनी बेशर्मी से और ढटाई से हो रही है जिसका कोई हाथ ही नहीं है। बस वो आप ये खातून ने आपको सही बताया कि ख्वातीन को तो बहुएं रखने के लिए तैयार हो जाती हैं कि चलो उनके बच्चे को खिला रख देगी, थोड़ा बहुत काम कर ले। जो बुजुर्ग हैं उनको नहीं रखते, वो उसी को रखते हैं जिसकी कोई थोड़ी बहुत जायदाद होती है। जायदाद अगर नहीं है तो ये तो फ्री मुलाजमा चाहिए, ये फ्री मुलाजमा बन जाती है। तो ये अभी तक अपनी औलाद का पर्दा रख रही हूँ। क्यों जमीला जी, ऐसी औलाद का क्या फायदा जिसका आप इतना पर्दा रख रही हैं? सही कह रहे हैं, मगर ये कुछ अल्लाह पाक ने माँ की ऐसी कुछ ये चीज़ ऐसा दिल बनाया कि अच्छा हम तो अब मुसीबत में या यहाँ पे आराम से हैं, चलो वो जैसे हैं खुश रहें। अब तक ये सोचते हैं कि इनके बच्चे जवान होंगे तो अल्लाह के हाथ इंसाफ है, हमारा बदल फिर वो बच्चे खुद ले लेंगे, आखिर वो भी जवान हो जाएंगे। बस यही सोच। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इतने लोग उनकी कफालत करती है, सब कुछ करती है, तो आप लोग को डोनेशंस कौन देते हैं? बस आप जैसे आप प्रोग्राम आज कर रहे हैं, इसी तरह पिछला एक प्रोग्राम हुआ मेरे ख्याल में समा में, एक आदमी ने आकर सारे यूपीएस लगवा दिए जो है, तो एक और शरीफ आदमी ने कहा कि मैं जुमेरात को जो है खाना मेरी तरफ से होगा, हर जुमेरात को वो खाना बेसिकली लोगों की डोनेशंस पे सारी डोनेशन है। कुछ यानी हमारे जो मेंबर्स हैं कुछ वो अपनी कंट्रीब्यूशन करते हैं, हर महीने कोई देते हैं,
प्लस अगर लोगों ने आपको डोनेट करना हो तो कैसे करें डोनेट? हमारा अकाउंट है ओल्ड एज होम का, जो है ओल्ड एज होम का अकाउंट है टाउनशिप, हबीब बैंक टाउनशिप ब्रांच। चलें, आपका अकाउंट इस वक्त स्क्रीन पे हम फ्लैश करने की कोशिश करते हैं। आपने अजीज साहब कोई पैगाम देना है अपने बच्चों को? बच्चों को यही पैगाम देना भाई, लिहाजा मैं अदारे में हूँ और लिहाजा जिनसे मैं कहते मैं घर से आपने बाद में मुझे निकाल दिया है, अब मेरा कोई सिला नहीं, अदारे के बाद मैंने मरना जीना यहीं पे इनके पास ही, और यहाँ भी कर कफन भी होएगा ना वो भी कर मांग के जैसे भी होएगा। बाकी मैं अपनी औलाद को शक्ल नहीं दिखाऊंगा इस तरह जैसे उन्होंने मेरे साथ सलूक किए, मारा कूटा, और अल्लाह ताला ने परवरदिगार ने मुझे बचा लिया मौलाना। और बीवी ने ये सारी बात सारी बीवी की है, बीवी ने बच्चों को पढ़ी पढ़ाई सहाया, तो आज उस औलाद ने मेरे साथ वो बीवी ने बेसहारा छोड़ दिया ना आपको, बीवी आपका सहारा बनती थे, आप बिल्कुल रह जाते। बाकी वो मेरा सहारा नहीं बनी, और वो बच्चों को उन्होंने पूरी वक्री तबीयत दे के आज मैं ये घर से बेघर हूँ। आप अपनी औलाद को कोई मैसेज देना चाहती हैं? मैं अब मैसेज दे के फायदे कुछ नहीं है, खामोशी से अपना टाइम यही गुजार। ईद बकरीद पे आते हैं? ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। कोई शादी बच्चों की है वो कोई राब्ता? बिल्कुल नहीं, वो तो मैं ही बेशरम बन के जाके मिल मिलाऊंगी तो वो 2-1 दिन में ही वहाँ पे बड़ा मसले होते रहेंगे कि ये देखो यूँ सारा काम करना पड़ रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, मैं फिर वापस आ जाती। हमारे बच्चे कहते हैं हमें शर्म आती है अदारे में जाते, मिलते हैं हमें शर्म आती है, हम नहीं जाएंगे। किससे शर्म आती है? नहीं आते, अदारे में आने से शर्म आती है। नहीं तो फिर आने ना दें, ले जाएं अपने साथ। ये नहीं करना ना, यही तो हुआ है। हमें साल हुआ है इधर आए, हमने छोटी ईद भी इधर की है, बड़ी भी इधर की है, हमें किसी ने नहीं कहा कि हमारे पास ईद करो जहाँ हम ले जाए। पहले दिल में आता था कि बच्चे आएंगे कहेंगे ले जाना है तो ले चले जाएंगे, अब नहीं जाएंगे, बच्चे कहेंगे फिर भी नहीं जाएंगे, हमारा यही कार है। पक्का तहिया कर लिया ना। आप सबका अल्लाह का शुक्र, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें आसान करे, अल्लाह ताला आपकी ऐसी नाफरमान और खुद गर्ज औलाद के दिल जो है वसी करे। शुगर दी मरीज हूँ और मुझे शुगर है, मैं ब्लड प्रेशर दी, एक दफ़ा मैंने खाया अटैक भी हो गया सी दिल का, पता नहीं कितने देर है जीना या कितनी देर नहीं जीना। वाक़या मुझे बड़ा दुखी है बट चलते चलते याद आ रहा है, और वो ये उससे पहले मैं बताऊं कि फजल रहमान नियाज़ी साहब, आप जब बात कर रहे थे तो आपका जो इदारा उसका नाम और अकाउंट नंबर जो है वो स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा था, ताकि कोई अगर मुखय्यर हज़रात आपके साथ इस नेक काम में शामिल होना चाहें तो वो ज़रूर हो सकते हैं। और मैं इसलिए आपको वसूख से कह सकता हूँ कि ये पहली बार ये हमारे पास नहीं आए नियाज़ी साहब, और इनको हम बहुत अरसे से इनके इदारे को देख रहे हैं एंड दे आर डूइंग अ ट्रेमेंडस जॉब। और ये सिर्फ एक नहीं है, इस तरह के बहुत से इदारे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि सिर्फ लाहौर शहर में। एक लड़के को इश्क हो गया एक लड़की से और उसको बड़ा ज़्यादा प्यार हो गया उससे, तो उस लड़की ने उसके ऊपर शर्त ये लगाई, उसने कहा कि अपनी माँ का दिल लेके आओगे मेरे पास तो मैं मानूंगी कि तुम मुझसे प्यार करते हो कि नहीं। तो उसने अपनी माँ को मारा खंजर से और उसका दिल निकाला, और वो अब जा रहा था खुशी खुशी उस लड़की के पास, तो रास्ते में उसको ठोकर लगी, उसके हाथ से वो दिल निकल के गिरा, तो उस दिल में से आवाज़ आई कि बेटा तुझे चोट तो नहीं लगी है। तो ये होती है माँ बाप का प्यार, एक लेजिटिमेट किस्म का, अनपोल्यूटेड किस्म का। दिल से ना माँ का दिल इतना भी नहीं बर्दाश्त किया कि बच्चे को ठोकर नहीं करता। और एक ये औलादें हैं हमारी सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव, पढ़े लिखे, जैसे उनका डबल MA इनके बच्चे, तो ऐसे डबल MAs का और ऐसे MBAs का क्या फ़ायदा जिनको अपने माँ बाप की कदर ना हो। अगर ये आपके वालिदैन हैं और आप देख रहे हैं टेलीविज़न, आप दुनिया TV देख रहे हैं, तो कम से कम दुनियादारी के लिए आके मिल लिया करें। बोझ नहीं उठा सकते ना उठाएं, उसकी तो अल्लाह आपको तौफीक दे, बेहतर करे,
لیکن کم از کم مل لیں, اس ادارے کا آ کے ہاتھ بٹا لیں کہ جس نے آپ جیسے ماں باپ کا پتہ نہیں کتنے لوگوں کو وہاں پہ رکھا ہوا ہے. ان کے والدین نہیں ہیں جنہوں نے رکھا ہوا ہے, نہ ان کی ذمہ داری ہے, نہ ان کے بھائی ہیں, نہ ان کے بچے ہیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.